Happy Independence Day to everyone. Before we begin the program, here are some general instructions that everyone should abide by. Kindly put yourselves on mute unless stated otherwise. Everyone is requested to kindly not draw over the screen and make the meet chaotic. You may switch on your videos, but remember that you are visible to everyone. So kindly maintain the decorum of the session. Please note that this session is being recorded. If at any point of the program you get disconnected for some reason, please rejoin the session using the same invite link. देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है. हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है. जय हिंद. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आप सभी का इस आजादी के अमृत महोत्सव में स्वागत है. A very enthusiastic and a cheerful afternoon to everyone present here. We, the JDMC NCC 5 DGBN, take pride in our national identity and our motherland. Thus, we celebrate this day each year to remember the sacrifices of our freedom fighters in rescuing our motherland from the clutches of the British Raj. This day is also celebrated to showcase the importance of freedom and how much it costs. On that note, allow me to start the day. Once again, wishing you all a very happy 75th Independence Day. संगीत हमारी रूह को छुए, संगीत से हम खूबसूरत हुए, पूरा करे जिंदगी के जो गीत, ऐसी सुरीली दास्तां है संगीत. Here presenting a melodious song by our NCC cadets. श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. What a wonderful performance. It is aptly quoted, music and rhythm find its ways into the secret places of the soul. Over to you, Bhumika. Now, I would love to introduce you all to our NCC caretaker,
Dr. Devahuti Brahmachari ma'am, the backbone of our NCC family and mentor who has taught us hard work and optimism are the elements of success. She has been awarded with 2 national awards. The Veerta Award 2019 for her immense contribution to the progress of the nation through selfless service under the NCC category, and Women's Achievers Award 2021 for laying out an example for the women. She's an outstanding example of a hardworking lady with a pure soul. I request you, ma'am, to say a few words. First of all, I think so. A very, very happy Independence Day. 5 years, and we are here today. Yeah. So this that our nation has gone through. We should be lucky. We should, see this as a privilege that आज हम सब लोग इस तरीके से एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर कोने से दुनिया के एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं. So you can understand the growth that our nation has done, where our country stands today. And जब हम कहते हैं कि हमारी कंट्री इतना ग्रो कर चुकी है, डेवलप कर रही है, तो उसका जो फ्यूचर है वो कौन है? वो आप सब है जो आज एक साथ यहाँ पे असेंबल्ड है. एंड उस फ्यूचर को शेप करने के लिए जो हमारे मेंटोर्स है, जो हमारे लीडर्स है, वो हमारे सामने आज है हमारी चीफ गेस्ट. आई थिंक सो वर्ड्स आर वेरी फ्यू with whatever I know about you, ma'am, and it is just exceptional to see that yes, a person from academics, a person who has served the nation, a sports person. I mean, I think so it is going to take me an entire day if I keep going through your entire list of achievements. मैं बस ये कह सकती हूँ all in one package जिसको कहते हैं, our girls have the best opportunity कि इस date पे they have you in front of them as one of the biggest mentors, as one of the biggest I would say ideals that they can all look up to. And I'm really, really, really honored. I'm really grateful. I know you must be extremely occupied on this day, but we are very grateful that you have been able to join us today. So thank you so much. Thank you so much, Devahuti, for your kind words. Look at your smile and look at these pretty girls. You all made my day, yaar. I was looking forward to this, and these are my favorite audiences when I speak to the young girls. I was looking at energy किसी चीज से नहीं मिलती है. Thanks to you guys for inviting me and for giving me this opportunity. I'm completely feeling honored today. Thank you so much. It's a complete women power session, yes. I should say. It's a complete power-packed women power session, and that is what our country needs. That's all I can say. Yes, exactly. Fine. जश्न आजादी का इस वर्ष हम मनाएंगे. एक युग बीत गया, नवयुग हम लाएंगे. था सौंपा जिस खूबसूरत जहां को वीर सपूतों ने, लहू देकर उसकी आन हम बचाएंगे. सींचेंगे इस बगिया को आदर्श और जुनून से, आजादी के नवयुग को अमन प्यार से हम सजाएंगे. Now, let's have a look at the journey of the independent India. Long years ago, we made a tryst with destiny. दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम, वंदे मातरम.
मातरं मलयज शीतलां मातरं सुजलां सुफलां मातरं मलयज शीतलां मातरं शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं ये थी आजाद हिंदुस्तान की एक खूबसूरत झलक. Now, we heartily welcome our special guest, Captain Dr. Sunaina Singh. She has 14 years of diverse and enriching experience in administration, management, education, teaching, and training. She served with the Indian Army as an intelligence corps officer. She's an outstanding sportswoman. Ma'am has represented Haryana State, Delhi University, and Punjab University at national level and at all India inter-university level in handball. She is a former professor of University of Delhi. She has attended and presented papers in national and international conferences. Many of her papers got published in international journals of psychology and management. Ma'am is lifetime member of Indian Career Development Association, Haryana Psychological Association, Indian Academy of Health Psychology, and Association of Positive Psychology. She has also written a book titled Authentic Leadership and Psychological Capital, a managerial study. She is also a motivational speaker. We are really honored to have you here, ma'am. Thus, without wasting any time, I would like to invite ma'am to take over the session. Thank you so much, Bhumika. And you all girls are looking so pretty. Thank God I'm also wearing white today. Okay? So I'm matching with you all young girls. Fine. And thank you so much. But कई बार सही में ऐसा लगता है जब तुम पढ़ रही थी, is it about me only? Thank you so much कि मतलब ठीक है थोड़ा बहुत. But so whatever little I'm doing, it is, मैं सच बता रही हूँ, education is just not about getting degrees. You know, education is something more. I was able to do that somewhere because I'm in that privileged lot. मुझे सच में लगता है our parents, we all, in case if you are able to listen to me, अगर आप लोग आज बैठे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, DU में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का रोल है. We feel blessed, you know, we are privileged. But in our country, India, how many are there जिनको ये opportunity नहीं मिल पाती है just because being a woman, which is not. तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ, it's a journey of a woman. How in last 75 years कैसे, मतलब hats off to that first lady जब ये education start हुई थी. Actually कोई भी चीज difference करती है, that's education. And education is always not getting the degrees. It is what? When you can use the power of education in impacting the lives of others. In the society, giving back to the society. उस टाइम में सावित्री बाई फुले जो स्टार्ट हुई थी, जो पहली लेडीज जिन्होंने women के लिए सोचा that yes and why not, our और ये कोई privilege नहीं है getting education, it's our right, it's there in the constitution.
सो आज मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों से, अगर आज हमें थोड़ा प्रिविलेज मिला है, सो लेट्स नॉट, अपने बारे में तो सबको सोचते हैं ना, तो आज हम इस प्रिविलेज से किसी दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आप आने वाले टाइम के अंदर, आई एम श्योर यू ऑल वुड बी रीचिंग सम हाइट्स इन योर करियर, आप किस तरह से वापस कंट्रीब्यूट करेंगे, और कहीं ना कहीं जो लोग जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिला है उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट दे आल्सो स्टार्ट गेटिंग द बेसिक राइट्स। ये बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, और वही एजुकेशन का ट्रू मीनिंग होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड व्हेन वी स्टार्ट इम्पैक्टिंग द लाइव्स ऑफ अदर्स, यू एक्चुअली स्टार्ट फुलफिल्ड इन योर लाइफ। ये फुलफिलमेंट की फीलिंग देता है आपको, और कोई चीज नहीं मिल सकती है जिससे ना। एंड मैं सच बोल रही हूँ, आपकी यंग जनरेशन, मैंने आई वाज टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आल्सो ना, जब मैं तुम यंग लड़कियों को देखती हूँ, मुझे इतनी होप मिलती है ना, आई कांट टेल, आई कांट एक्सप्रेस। जब मैं अपने आप को 20 साल पहले देखती हूँ, 99 में मैंने आईपी कॉलेज ज्वाइन किया था, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 2002 में मैं वहां से पास आउट हुई। वो 3 साल, मैं सच बोल रही हूँ, आई वाज वर्किंग फॉर माई सेल्फ। मैं सच कह रही हूँ, ठीक है, अपनी पढ़ाई कर ली, खेल खेल या गेम खेले, शायद वो यूनिवर्सिटी के लिए होता था, उसके लिए होता था, बट स्टिल, बट यू यंग गर्ल, द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू हैव, अभी से कितने बच्चे कितने एनजीओस के साथ काम करते हैं, कितने फोकस्ड हैं कि दिस इज व्हाट मैम आई वांट टू डू। सो हैट्स ऑफ टू यू ऑल फॉर गिविंग अस द होप ऑफ बेटर इंडिया। थैंक यू सो मच। सो आई वांट टू स्टार्ट विद दैट कि you girls are the one who all collectively going to make some positive change. So wish you all a very 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 happy Independence Day, और हम इसी तरह अपनी आजादी का जश्न हमेशा मनाते रहें, और इस आजादी को हम संभाल के रख पाए। ठीक है, लोग इसको, मैं बहुत मुश्किल से मिली है यार, बहुत मुश्किल से मिली है, आसान नहीं थी। जिन लोगों ने जान दे दी हंसते हंसते इसके लिए, इट वाज नॉट इजी फॉर अस। एटलीस्ट हम ज्यादा नहीं कर सकते, इस लायक तो बन सकते हैं कि जिन लोगों के लिए जान दी जा सकती है। राइट नाउ ऑल्सो यू जस्ट सी हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन सच एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। उसके बाद वॉर भी हो जाती है। लुक एट देम, नॉट ओनली टू देम, टू देयर फैमिलीज ऑल्सो, है ना। वो किसके लिए वहां खड़े हैं? नॉट बिकॉज दे हेट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम, नो नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज दे लव द पर्सन बिहाइंड देम। हम जैसे लोगों के लिए तो हमें कम से कम उस लायक तो बनना ही है ना कि कोई भी हमारे लिए जान दे सके, और उनकी जान देनी वेस्ट ना जाए, उनको ऐसा कम से कम फील ना हो। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ जर्नी ऑफ अ वुमेन ऑफिसर्स ऑल्सो। इंडियन आर्मी के अंदर किस तरह से हम और आप बहुत सारे, आप सभी लोग एनसीसी कैडेट्स हैं, तो आप सब लोगों का कहीं ना कहीं ड्रीम होगा वो यूनिफॉर्म पहनना। तो आज मैं इस सेशन में हेल्प करूंगी आप लोगों को, जितना मुझे आता है, ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑल कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है आर्मी सिलेक्शन की, कौन कौन सी एंट्रीज आप लोगों के पास है। एसएसबी का जो भूत है आप लोगों के सर में, थोड़ा सा उतारने की कोशिश करूंगी उसको। ठीक है, कि इट इज नथिंग मच, बहुत ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। तो कहाँ से स्टार्ट करें जर्नी? सोचो, जस्ट रिमेंबर फ्यू डिकेड्स बैक, ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी जॉब, है ना, हर जॉब वाज मेल सेंट्रिक। As you know, earlier even getting education was considered as a privilege for ladies, which was not. It is our right. But slowly and steadily, women are making their spaces everywhere. Everywhere. Earlier they were ruling their houses. Now also they are ruling their houses. But along with that, they have started ruling many of the multinational companies in politics, in government jobs, and also in defense services. We have fighter pilots now. We in army, they are given PC. So they are moving in the right direction, and I'm sure you all girls have a bright future in army also, in defense services also. But aap sab logon ke liye it's very natural to wonder how it feels to be a woman in a forces where you are surrounded by men at higher ranks. That actually tests sometimes your mental resilience also and your physical strength also. बट बच्चा, आर्मी के अंदर भी अभी इन आर्म्ड फोर्सेस स्लोली वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल यंगस्टर्स। फाइन, सो वो चेंज आ रहा है। आप सोचिए, और ये चेंज आर्मी में क्यों आ रहा है? बिकॉज हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहा है।
ठीक है, ये जो सोसाइटी, आर्मी इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ओनली, सो ऐसे चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं, धीरे धीरे आते हैं। किन की वजह से आ रहे हैं? देयर आर पीपल हु आर फाइटिंग फॉर अस। उस टाइम सावित्री बाई फुले स्टार्ट हुई एजुकेशन राइट के लिए। देयर वाज फर्स्ट लेडी जो पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में गई होगी, और हैट्स ऑफ टू दोस 25 डेयरिंग कैडेट्स जो 1992 के अंदर पहली बार, है ना, वो कितना क्रिटिसिज्म, कितना चैलेंज लेके गई होंगी। उन्होंने जो चैलेंजेस देखे होंगे, वो मैंने जब 2006 में ज्वाइन किया तब इतने नहीं थे। आप जब लोग ज्वाइन करेंगे अब आने वाले टाइम में, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। बिकॉज, और एक और चीज, व्हेन यू गो एंड ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज और इंडियन आर्मी, मैं पर्टिकुलर बात करती हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू दैट, आई बिलोंग टू आर्मी, सो योर जेंडर डज नॉट मैटर. Mark my words, you join there as an officer. Yes, gender is something in our mind always, and you all can use your gender as your growth. I feel being a woman is my power. I have that extra X chromosomes. We have the ability to multitask and a fire in our belly that we are here to prove that yes, we can do everything along with side with our dreams also. So that is the power of women. So feel proud of what you are. Clear? बहुत सारी लड़कियां, मुझे ऐसे लगता है कि हमें लड़का बनने की जरूरत नहीं है, उनकी तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है. We'll accept our femininity, our grace, the way we are. Is that clear? तो वही मैं आप सब लोगों से बताना चाहती हूँ. अब अगर हिस्ट्री की बात करें, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, इंडिपेंडेंस से पहले आर्मी के अंदर women were not there, only they were there in what? Nursing services. Clear? ये 1888 से स्टार्ट हो गई थी आर्मी के अंदर, जब अंग्रेजों का टाइम था. उसमें भी इंडियन नर्सेस जाती थी और रिक्रूट होती थी, ठीक है. बट after 47 में we got the freedom. It another took 11 years. In 1958 Army Medical Corps became the first unit of Indian Army to grant regular commission to women. Clear? But in the non medical roles जो है वो कब स्टार्ट हुई? 1992 से स्टार्ट हुई. So women were first inducted to various branches of Indian Army only as a short service commission officer when in 1992. उस टाइम वो 25 लेडी थी, and Priya Jhingan was the first lady officer. एक सेकेंड, फर्स्ट लेडी ऑफिसर who got commissioned. ठीक है, तो hats off to her. यही वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं हम सब के लिए रास्ते आसान कर देते हैं. सो वी ऑल शुड बी वेरी थैंकफुल टू दैट, एंड यू ऑल्सो बिकम दोज फिगर कि कल मेरे को पता चले कि कॉम्बैट रोल में हमारे बच्चे जा रहे हैं. किस वजह से जा रहे हैं? फॉर ऑल डेयरिंग गर्ल्स यू आर. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टाइम, एंड आई एम श्योर दैट टाइम विल वेरी सून कम. और उसके बाद कैसे कैसे देखो हम बढ़ते चले जा रहे हैं. फिर उसी बैच में से अलका खुराना was the first women from Indian Army to participate in the Republic Day Parade and Army Day Parade. समझ रहे हैं? फिर देखिए हम कैसे ग्रो कर रहे हैं. 2008 में जाके हमें परमानेंट कमीशन मिला. किसके अंदर? सिर्फ 2 ब्रांचेस, लीगल ब्रांच, जैग ब्रांच जिसको बोलते हैं, और एजुकेशन कोर के अंदर. वी गॉट इट इन द 2 ब्रांचेस. फिर हम लड़ रहे हैं धीरे धीरे. वी आर ट्राइंग टू प्रूव आवरसेल्फ. भाई अगर हम 14 साल काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट आफ्टर दैट? व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ डूइंग दैट? एंड इफ आई हैव, एंड इट इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, है ना. दैट इज व्हाई. तो चैलेंजेस आर देयर, बट वी हैव टू टेक दोज चैलेंजेस इन द पॉजिटिव स्ट्रेंथ, और हमें अपनी कॉम्पिटेंस से उसको चैलेंज करना है. आप समझिए, जेंडर से नहीं, कॉम्पिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. सो देयर वर सो मेनी कॉम्पिटेंट गर्ल्स. तो देख के सबको लगा यस, इफ दे कैन सर्व फॉर 14 years, दे हैव राइट टू सर्व फॉर another जितने भी उनका परमानेंट कमीशन, they have the right of getting that permanent commission. So finally you all are lucky. In 2020 now, first time permanent commission is given to जो बची हुई हमारी 8 ब्रांचेस भी है आर्मी की, ठीक है, 8 कोर्स जिसको हम बोल सकते हैं अभी तक. बट 2020 में भी women are not allowed in the combat roles. Fine, in the fightings are, but don't worry. बहुत बच्चियां जोश खा के आती है, मैं why not, हमें तो उसमें जाना है. Don't worry बेटा, there are certain criteria.
gradual. These changes happen very gradually. ठीक है, we need to fight for that. और ये हमेशा से, being a woman, we are fighting since long, and we are that capable of that. Yes, we'll fight that way only. So for, as per me also, if you understand, yes, if a person is competent, physically fit, trained in that manner, meeting all the physical training criteria, so why not? She is allowed to go for the combat role also. Yes, she has all the right. बशर्ते आप स्टैंडर्ड रखिए, अगर दे आर मीटिंग दैट तो व्हाई नॉट. सो ऐसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चेंजेस जरूर आएंगे. क्लियर? नाउ व्हेन आई कम टू व्हाट इज द, हाँ, अब वी हैव मेनी ब्राइट वुमेन ऑफिसर. मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, लेट मी टेल यू ऑल. ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एडमायरिंग लेडीज हैं आज के टाइम में, हु आर स्टिल वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, सर्विंग द नेशन, मैनेजिंग द होम फ्रंट एंड एवरीथिंग ऑल इन वन दे आर डूइंग. वी हैव और अब फौज इतनी डिस्क्रिमिनेटरी भी नहीं है. लेट मी टेल यू, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर. Fine. So Lieutenant Colonel Mitali Madhumita hai. She got commissioned in 2000 and she's the first woman in India to receive Gallantry Award. Sena Medal mila hai unko for her exemplary courage. Then Divya Ajit Kumar 2010 में first female officer to receive Sword of Honor at OTA. Imagine kitne cadets honge, and she is the one because she topped it and she got it with her competence. Clear? तो आप अपनी competence, अपनी ability से किसी का भी मुंह बंद करा सकते. Clear? Then comes your Captain Swati. She is the first engineer girl officer. तो जो नाथुला पास में डिप्लॉयड हुई है, बहुत हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, एंड शी वाज द सिग्नल इंचार्ज ओवर देयर. और यार सिर्फ वॉर फ्रंट ही नहीं होता है डिफिकल्ट सिचुएशन. Working in CI areas in the difficult situation, and already women are doing all those tasks, whatever been assigned to them. Is that clear? And now in Air Force, you see, we have fighter pilots in the combat roles. We have Avni, Mohana, and Bhavna. They are the 3 women fighter pilots with the Indian Air Force. So you all have, if you have a zeal, if you have a grit, if you have a dedication, I'm sure you have better avenues. Fine. और सारे रास्ते आप लोगों के लिए खुलते चले जाएंगे. But yes, challenges are there. It is not going to be the bed of roses, बच्चा. फौज इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग. ये और women के लिए थोड़ा मुश्किल क्यों हो जाता है बच्चों? बिकॉज women officers are very less as compared to counterparts, है ना? बिकॉज हमारी लेट हम वहां पे जाना स्टार्ट हुए हैं. सो व्हेन कई बार आपको लगेगा, कई बार, जैसे I have also failed sometime when a male officer is not performing certain task up to the mark, then they will say that officer is not competent. अगर वही, if a women officer is not doing it, then they will say, then everything start coming to the gender, which is not right, and that is not there in the organization. Mark my, that is there sometime individuals. ठीक है, you go and meet different individuals. ठीक है, वो भी इसी सोसाइटी से आए हुए हैं ना, तो कई लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है. बट फॉर दैट what you all need to be emotionally strong. You all need to be competent so that you can prove them, no, this is what I am. Is that clear? थोड़ी सी challenges और हो जाते हैं because when you are, और ये challenges बेटा whenever you are working in any of the job, ठीक है, जो वो balance होता है family और professional life का, वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. And in army it multiplies work life balance जो basically, because you are on the constant move because of your posting and you are moving with your children, family. For my child in grade 4, it was his 9th school. सोचो कितना मूव रहा है ना? मेरी 13 साल की शादी में मैं 15 बार घर पैक और अनपैक कर चुकी हूँ. ठीक है, so that is it. But when I was serving in army, or I am a part of army, or I was trained in army, I was mentally prepared for all the challenges. And yes, there were difficult times, but armed forces groomed me to take those challenges and to overcome those difficult times. It is an organization which toughens you and gives you an opportunity to become an officer, remain a lady, do your profession, and the whole world looks up to you. Indian Army is, सच कह रही हूँ बच्चों, it is one of the most respected organization. It is the safest place to work, and you are really respected in this. You are respected not for being a woman.
You are respected as an individual, as an officer for your own competence. So that is what it is. Clear? तो ये मैंने थोड़ी जर्नी की बताई. अब मैं बताती हूँ what all army offers you. बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप तो एनसीसी कैडेट्स हो, आप तो ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, तो मेरा आधा काम तो कम हो ही गया, ठीक है. क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाती हूँ या और बच्चों के साथ बात करती हूँ जहाँ एनसीसी कैडेट्स नहीं होते, आप मार्क माय वर्ड्स, फौज मिले या ना मिले, आप जिंदगी में जरूर अच्छा करो. क्योंकि एक जुनून है, एक जज्बा है, अभी से फोकस है कि लाइफ में कुछ हटके करना है. वही बच्चे एनसीसी ज्वाइन करते हैं, मुझे पता है. यू आर द थर्ड फोर्स. क्लियर? सो एसएसबी हो ना हो, ऑफिसर बनो ना बनो, आई एम श्योर वट एवर वेयर एवर यू विल बी गोइंग, यू विल बी मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स विद योर लाइफ. फाइन, एंड आई हैव दोज होप्स फ्रॉम यू. So when it comes to army, जब मैं दूसरे colleges में जाती हूँ, उनको मुझे बताना भी पड़ता है what all army offers you. So I'll tell you girls also, fine, what all army offers you. Army life, बच्चा, it's a life where growth is a way of life. So Indian Army promises both professional and personal growth at every stage of your career. जो inherent adventure, extracurricular activities in army, it ensures an all-round development of yours, which is so essential in today's world. And you all can join army. The only thing they are looking for, certain kind of qualities. That's it. So, और फौज क्या देती है? Apart from attractive pay and perks, अब तो पे तनख्वाह भी अच्छी होगी, आप सबको पता चल गया. Once you will go, stipend 55,000 मिलता है, and once you pass out from there, तो around 80-85,000 you get it. और stipend एक साल में 55,000, सोचो जो जमाई हो रहे हैं ना, अकेडमी में तो टाइम नहीं होता पैसा खर्च करने का, तो वापस आके आप अच्छी डाउन पेमेंट पे आप अच्छी गाड़ी भी खरीद सकते हो, ठीक है. सो जस्ट ऑन द लाइटर नोट, सो बीट एनी सोशल इंटरैक्शन, finest of the clubs, sports activities, medical facilities, all the ample opportunities are there. Army has it all. In fact, you are paid to lead a healthy life in healthy environment. And I still don't understand. I go to different school and colleges. If I ask कि फौज में कौन आना चाहता है, 5 या 10% बच्चे हाथ भी नहीं उठाते हैं. सच्ची में मुझे बहुत तकलीफ होती है. Why not यार? ठीक है, कितना सब कुछ मिल रहा है. आप सोचिए, आपको सब्सिडाइज हाउसिंग मिल रही है, ठीक है, आपको घर मिल जाता है, मेडिकल मिल जाता है, अपने अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए मिल जाता है, सीएसटी फैसिलिटीज आर देयर, इंश्योरेंस कवर इज देयर, लोन्स मिल जाते हैं, और इन सब को छोड़ो यार, एंड अबव ऑल अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू अ फैमिली व्हिच केयर्स फॉर यू. सो दीज ऑल आर द पर्क्स व्हिच आर्मी ऑफर्स यू. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तभी मैं कहती हूँ, प्लीज कम एंड ज्वाइन आर्मी एंड लिव लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. देयर इज नो कंपैरिजन विद दिस फौज, बिकॉज इट इज नॉट अ जॉब, इट इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ पैशन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ. यू आस्क एनी फौजी हाउ मच यू आर अर्निंग, देयर आंसर विल बी, मैम, sir, I'm earning 100 salutes in a day, and that's what Fauj is. The kind of respect you get in army, you will not get anywhere else. Bachas, you will not get. Or you can, yes, you can earn more money in corporate, but not respect. And सच्ची बताऊं, पैसे का क्या है, कितना भी हो कम होता है, कितना भी कमा लो, कितने भी जीरो हो तुम्हारी सैलरी फिगर के आगे, वो हमेशा ही कम रहेगा. अदानी और अंबानी अभी भी पैसे के लिए रो रहे हैं. So corporate world is all about, you know, बाकी जो हो जाते हैं, profit, loss, business. Fine. Army is all about values, human values, relationships. कोई भी जो war जीती जाती है मेरे बच्चों, किस चीज पे जीती जाती है? इंटेलिजेंस, प्रॉफिट लॉस पे नहीं जीती जाती, जोश से जीती जाती है. रिश्तों का मतलब समझते हैं कि आपके साथ वाले की जान चली गई तो अब आप ये जोश होता है उनका. कल रात ही मैं वो देख रही थी शेरशाह, कितनी बार एलओसी देखी. आप सब कईयों के लिए वो एक मूवी हो जाती है, हमारे लिए एक एक जज्बा जुड़ा हुआ है, एक एक सीन ऐसे लगता है, ओ माय गॉड, अपनी फैमिली से कोई ऐसे चले जाए. कल रात, माय हस्बैंड इज पोस्टेड इन फील्ड दीस डेज. यकीन करो, व्हेन आई वाज एन ऑफिसर बड़ी आसान हो जाती थी चीजों को देखना, बट बीइंग अ लेडी वाइफ, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रेनिंग ओवर देयर, परफेक्टली फाइन, ठीक है, आप प्रेजेंट के अंदर है, आपको पता नहीं पीछे क्या, बट जब आप यहाँ वेट कर रहे हो, गलत टाइम पे फोन भी बजता है ना, तो दिल के अंदर ऐसे स्टार्ट हो जाता है, ओ माय गॉड, सही फोन तो होगा, बस सब ठीक हो. एक ही चीज मांगते हैं, एवरीबडी शुड बी फाइन, सब ठीक ठाक फील्ड से वापस आ जाए, बस इतनी ही दुआ होती है लाइफ के अंदर.
सो जितने भी फौजी हैं, रिस्पेक्ट और प्राउड दो ही चीज है बच्चा, और ये फीलिंग्स है, ये इमोशंस है. Life is all about emotions. Emotions are very powerful, very very powerful. You see any of our Fauji in a uniform, आपको भीड़ में पहचाने जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि when they wear a uniform, when they put those stars on their shoulders, उनका 2 इंच कद अपने आप बढ़ जाता है. The way they walk so smartly, है ना? क्यों? क्योंकि वो प्राउड फील करते हैं अपने आप. ये प्राउड फील करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज. आप कितनी भी टॉप पोजीशंस पे चले जाइए, बिकॉज देयर आर पीपल जिनको आप कमांड करते हो, वो इज्जत जो आपको देते हैं. आप सोचिए कौन किसके लिए जान दे सकता है, बट इन फौज, यस, ट्रूली पीपल कैन, यस, दे कैन डाई फॉर यू. बोला जाता है ऑफिसर्स को, साहब आप पीछे हट जाइए, मुझे आगे जाके देखने दीजिए. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. आप सोचिए और क्या चाहिए. यू स्टे फिजिकली फिट, एक्टिव, और कोई मोनोटोनस जॉब नहीं है. हर जगह नई जगह जा रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नए काइंड ऑफ एवरीवेयर. सो इट इज न्यू. ऐसा लगता है हर रोज एक नई जिंदगी जी रहे हैं. दैट्स व्हाट यू डू. फाइन. सो ये हो गया मोटिवेशनल पार्ट बच्चा. अब मैं आप लोगों को थोड़ा इंफॉर्मेशन देती हूँ फौज के बारे में. आप सबको पता होगा, आप सब एनसीसी कैडेट है, हाउ टू ज्वाइन इट. ठीक है, तो आप यूपीएससी और डिफरेंट एंट्रीज, यू ज्वाइन देयर एज अ लेफ्टिनेंट, देन यू बिकम कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल. लेफ्टिनेंट कर्नल तक हर कोई बनता है. क्लियर. फिर जब कर्नल बनना होता है, देन इट डिपेंड्स बोर्ड एंड वैकेंसीज. भाई इतनी वैकेंसीज निकली है, उसमें जितने अच्छे टॉपर लोग होते हैं उनको बना दिया जाता है. क्लियर. आगे आगे ये पिरामिड ऐसे होता चला जाता है. क्लियर. हर कोई कर्नल नहीं बनता है. सो दैट्स व्हाट. सो आफ्टर 13 years आपने कैसा परफॉर्म किया है अपने पिछले 13, 14, 15 साल के अंदर, दैट मेक्स इट. Fine. Then they become, and I'm so happy to see now girls will be becoming colonels with those red tabs. कितनी pretty लगेंगी सबको, है ना? So you won't be needing more lipsticks now. आपके वो red tab आपके अंदर वो पैदा करेंगे. ठीक है, वो जोश पैदा करेंगे. Fine. Brigadier, then Major General, Lieutenant General, General. So this is the complete hierarchy of Indian Army. Now, एंट्री स्कीम्स के ऊपर जब हम आते हैं, तो ठीक है, आप सबको पता है 3 तरीके से जाते हैं. यूपीएससी, जिसके अंदर आप रिटन एग्जामिनेशन देते हो, सीडीएस का पेपर देते हो. फिर आपका नॉन यूपीएससी होता है, जो आपकी स्पेशलिस्ट एंट्री होती है, जो एनसीसी के बच्चों के लिए निकलती है, जिसमें आपको रिटन नहीं देना होता, आपकी डायरेक्ट एसएसबी कॉल आती है. फिर एक जैग ब्रांच होती है लॉ करने के बाद, ये भी स्पेशलिस्ट एंट्री के अंदर आती है. और तीसरी आपकी टेक्निकल एंट्री, जो आपकी होती है इंजीनियर्स की. क्लियर. तो यूपीएससी वाले बच्चे आ जाओ सबसे पहले. ठीक है. शॉर्ट सर्विस, जो बच्चों ने एनसीसी नहीं ली है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है. यू जस्ट नीड टू क्लियर 1 सीडीएस का एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम. एज लिमिट 19 to 25 होती है. किसी भी सब्जेक्ट में कर लो बच्चों ग्रेजुएशन. मैम किस सब्जेक्ट में करे, कौन सा सब्जेक्ट हेल्प करेगा? कोई सब्जेक्ट हो जो तुम्हारा पढ़ने का मन हो, बस वो पढ़ लीजिए आप. ठीक है. सो दैट्स व्हाट दे नीड. फाइन. ओटीए में ट्रेनिंग होती है. यू ऑल, अभी तक विमेन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग सिर्फ ओटीए चेन्नई में ही होती है. इट्स अ 49 weeks ट्रेनिंग एट पार विद द मेल ऑफिसर. इन माय टाइम इट वाज जस्ट फॉर 6 months. इन योर टाइम नाउ इट्स एट पार विद द मेल ऑफिसर्स. फाइन. फिर जो एनसीसी वाले बच्चे, ध्यान से सुनिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट 55% आपके बीए में मार्क्स होने चाहिए और अल्फा ग्रेडिंग. बट स्टिल यू ऑल गर्ल्स मस्ट अप्लाई फॉर यूपीएससी एंट्री ऑल्सो. रिटन एग्जाम इतना मुश्किल है बच्चों, उसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है. अगर आपकी एनसीसी की 4 वैकेंसी है, तो उसमें 24 वैकेंसीज होती हैं. दैट्स द डिफरेंस. क्लियर. तो आप उसके अंदर भी जरूर अप्लाई कीजिए सबके सब. ठीक है. फिर इन केस ग्रेजुएशन के बाद नहीं होता, तो लॉ करके भी आप फौज के अंदर जा सकते हैं. स्पेशलिस्ट एंट्री जैक, डायरेक्ट कॉल आती है आपकी एसएसबी की, और आप जैक ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. जज एडवोकेट जनरल जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. एज लिमिट 21 to 27 होती है. फिर टेक्निकल इंजीनियरिंग आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी नोटिफाइड स्ट्रीम के अंदर आप करेंगे, तो यू गेट अ डायरेक्ट एसएसबी कॉल. बच्चों, सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनसीसी इज regarding the joining process is available on www.joinindianarmy.nic.in. Visit that website regularly. Clear? साल में 2 बार नोटिफिकेशन निकलती है, सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ कितनी गई है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ उसके ऊपर अपडेट करते हैं. क्लियर. आपको अपनी मेडिकल के बारे में जानना है, मैम मेरी आंख इतनी है, इतनी है, इतनी है, बेटा वहां जाके देखो. यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो आपको पता होना चाहिए राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालनी है.
Clear? So it is available out there. All the medical policies are also available. Now coming to the preparation, बच्चा किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो? सबसे पहली चीज रिटन एग्जाम जो आपका होता है, ठीक है? CDS का पेपर बहुत बेसिक होता है. More than hard work, you need a smart work in that. Clear? Because वो बहुत इंटेलिजेंस हाई IQ के बच्चे नहीं, यू नीड अ स्मार्ट वर्क. ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर होता है, जनरल नॉलेज का पेपर होता है वहां पे. ठीक है, 2 ही एग्जाम होते हैं, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के. बेसिक सिलेबस होता है. पाथफाइंडर इज द राइट बुक ऑफ अरिहंत टू फॉलो इट. बाकी आप सिलेबस कहीं से भी कर सकते हो, वट एवर बुक यू वांट टू फॉलो. ठीक है, सभी अच्छी होती है, आपको पढ़ना है बस. सबने एक दूसरे से कॉपी पेस्ट कर करके किताबें छाप रखी है. ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है. तो आप कोई भी किताब लेके शिद्दत से पढ़ लीजिए उसको, अपना एक टाइम टेबल बना के, यू ऑल वुड बी एबल टू क्लियर दैट. नाउ कम SSB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब SSB का हवा बना रखा है इतना. सबसे पहली चीज समझिए बेटा, SSB इज नॉट अ नॉलेज टेस्ट, इट इज अ पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट. आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं वो लोग, तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है? किसकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं? आपकी. या तो आपके अंदर है वो चीजें, वो क्वालिटीज, या आपके अंदर नहीं है. अगर नहीं है तो आप 15 दिन में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप डेवलप नहीं कर सकते. एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम टेलिंग यू. हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट माइट गाइड यू कि आपको किस तरह से प्रोजेक्ट करनी है. कई बच्चों को प्रोजेक्ट करनी भी नहीं आती है. ठीक है, तो जो ये है वो आपके बारे में बात करने वाली है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है. बच्चे मुझसे टिप्स बोलते, द ओनली टिप आई गिव इट टू देम इज stay authentic. This organization functions on integrity. अगर आप वहीं पे जाके झूठ बोलेंगे, आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे. आपका नहीं चल सकता. It goes for 3 days. Psychological test, GTO, interviewing officer, तीनों आपको असेस करते हैं, फिर तीनों एक साथ बैठते हैं, और तीनों जब तक हाँ नहीं करते तब तक आप सेलेक्ट नहीं होते. So that is there in the SSB. तो SSB जो है बेटा 3 स्टेजेस होती है. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए रिपीट कर देती हूँ. जो स्टेज 1 होती है, दैट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट. यस, लक मैटर्स समटाइम्स, बट डोंट फील डिसहार्टन. एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, बहुत चांसेस देते हैं आपको फौज. तभी तो एक बार के बाद आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं दिए हुए. एज के हिसाब से आप कितनी बार भी जा सकते हैं, और तब तक जाएंगे जब तक स्क्रीनिंग ना हो जाएंगे. Have that dedication. Fine. तो IQ टेस्टिंग होती है, PPDT. IQ टेस्ट बेसिक वन. ठीक है, बेसिक इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आराम से छोटा सा सिलेबस, आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आराम से क्लियर हो जाता है. सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है. ठीक है, डिस्कस करना होता है. पिक्चर को परसीव करोगे, आप उसको लिखोगे. ठीक है बेटा, जितनी भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर वहां पे है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन टेल यू ऑल दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स व्हिच असेस योर पर्सनालिटी बेस्ड ऑन योर अनकॉन्शियस माइंड. इज दैट क्लियर? यू अंडरस्टैंड योर अनकॉन्शियस माइंड व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, जो आपको पता नहीं है. तभी इसके अंदर हेजी पिक्चर दिखाई जाती है, स्टोरीज, और टाइम लिमिट के साथ होते हैं. बिकॉज जब आप दिमाग यूज करके लिखना शुरू कर देते हो, तब आप अपने कॉन्शियस माइंड को वहां प्रोजेक्ट कर रहे हो. इज दैट क्लियर? और कॉन्शियस माइंड में तो आप चीजें चेंज कर लेते हो. और बच्चे क्या गलती करते हैं, सारे, आजकल तो गूगल बाबा सबका गुरु बना हुआ है, सारे स्टोरी वहां से रट के चले जाते हैं, इतनी किताबों से, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, और जाके वही स्टोरी लिखते हैं, और 10 बच्चे सेम स्टोरी लिखते हैं. इजीली पता चल जाता है यार. They want to know you, whether you have it in you or not, and you are projecting some other people's personality. How you are going to clear it? Tell me. कभी भी नहीं होगा. So you need to work upon yourself. आप कैसे कर सकते हो? I'll come to that also. Screen in हो जाते हो, बेसिक प्रोसेस समझाती हूँ, then I'll come to कि OLQs पे हम कैसे काम कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका जो स्टेज 2 आता है बच्चा, उसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, ग्रुप टास्क होता है. अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हो, आपसे PIQ फॉर्म भी भराया जाता है. भाई PIQ फॉर्म का तो सिंपल चीज है, जो आपका है आप लिखिए. बच्चे मेरे से पूछते हैं, मैम मैं अपनी हॉबी क्या लिखूं? यार बेटा, जो आपकी हॉबी है आप वो लिखिए, मैम थोड़ी ना बताएंगी. Problem with today's generation most of the time, which I feel, it's that not, I'm especially telling about you, but with most of the students, they're not aware about themselves. आप में से अगर मैं किसी से भी पूछूं कि tell me about yourself, आप कितनी देर बोल पाएंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, that's it. That's what you know about yourself. हम आजकल अपने से ज्यादा, अपने आप को खोजने से ज्यादा, अपने आप को समझने से ज्यादा हम दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्टेड है. दीपिका पादुकोण के साथ क्या हो रहा है, रणवीर सिंह कहाँ जा रहा है,
है ना, रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड कौन बनी हुई है. सो वी आर मोर वरीड इन अदर्स लाइफ, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. अगर आपको एसएसबी क्लियर करना है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस. Accept the way you are, accept that there are areas where I really need to work upon to become a better version of myself. Have the courage to accept yourself honestly. That is what is right, true statement. Be genuine and honest. That's how you have to fill your PIQ form. Avoid scratching. गलतियां बच्चे थूक से मिटो मिटो के लिखते रहते हैं. बाय गॉड, मैंने देखे हैं कई PIQ forms. So write clearly about your hobbies, self awareness, everything. ठीक है, तो की क्या है, सेल्फ अवेयरनेस इज मस्ट. तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करो. देन कम योर स्टेज 2. स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. जो साइकोलॉजिकल का टेस्टिंग का प्राइमरी एम क्या है बच्चों, टू असेस the potential of candidate in terms of the qualities or personality traits that are desired to become an officer like material. That's it. पोटेंशियल ऑफिसर बनने के लायक हो या नहीं हो, इतना ही चाहिए, जिसमें वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से निकालना चाहते हैं. तो उसके अंदर आप किस तरीके से, द ओनली टिप आई वांट टू गिव, अपनी लाइफ स्टोरी लिखिए बच्चे. उसके अंदर किसी से कैसे मैच करेंगे, कितनी बार आपने देखो ये टूर्नामेंट कराई होगी, ये इवेंट कराया होगा, एकदम प्रॉब्लम आ गई होगी, किस तरह से हैंडल किया. घबराए नहीं. पॉजिटिव एटीट्यूड, इनिशिएटिव. उन जो OLQs में अभी आपको बताऊंगी उनको अपनी स्टोरीज के अंदर दर्शाइए. That's the keys, but your own life stories. My parents, they were struggling, but I helped them out. That is what is required. है ना. और फिर कई बच्चे होते हैं जिनको सोचते बहुत अच्छा है बट लिख नहीं पाते हैं. So you need to practice that throughout your college life. तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्टिंग, ये सारे टेस्ट ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल. बिकॉज जब आप बीच में इनकम्प्लीट छोड़ देते हो तो उनको लगता है कि सोच के लिख रहा है बच्चा, विच यू आर नॉट सपोज टू डू इट. इट्स अ टाइम बेस्ड टेस्ट. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के ऊपर है बेटा. तो जो फर्स्ट थिंग कमिंग टू योर माइंड, बट पहली चीज ही नेगेटिव आती है क्योंकि प्रैक्टिस ही हम वही कर रहे हैं. पूरा दिन कंप्लेन कर करके जिंदगी निकल जाती है, क्रिटिसाइज कर करके दुनिया को निकल जाती है. दैट इज व्हाट वी प्रैक्टिस, और लिखते कुछ और है, इसीलिए टाइम लगता है. सो ये बड़ा बैलेंस नहीं करता है. ठीक है, तो आपको ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल गुड थिंग. आई विल कम टू दैट आल्सो. फाइन. ग्रुप टास्क के अंदर बेसिकली आपको क्या देखा जाता है, GD, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नेवर मीन ओनली अंग्रेजी. यस, अंग्रेजी इज इंपॉर्टेंट. Yes, because India is a multilingual country. लोग आपस में और कोई भाषा समझते ही नहीं है, कॉमन लैंग्वेज है ही नहीं. तभी इंग्लिश एक कॉमन बना रखे कि एवरीबडी हैज टू स्टडी इट, रीड इट. तो उसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़िए. और कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट हाउ कन्विंसिंग यू आर, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, हाउ यू कैरी योरसेल्फ. That is what is required. How much confidence you have. और कॉन्फिडेंस आपके चलने से, आपकी बात करने से, आपके खड़े होने से, हर चीज से आता है. उस टाइम अगर आप सिर्फ ऐसे खड़े होगे वो उससे नहीं आएगा. ऑलरेडी इफ यू आर कन्विंस्ड कि यस दिस इज व्हाट आई एम ट्रू टू माई सेल्फ, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इसीलिए लेक्चरेट होते हैं वहां पे. ठीक है, फिजिकल फिटनेस कोई नहीं, बट बेसिक आपकी मोटर हैंड कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए. बेसिक ऑब्स्टेकल्स देते हैं, उन ऑब्स्टेकल में आप एज अ ग्रुप में कैसे काम कर सकते हो. कई बच्चे होते हैं बिल्कुल काम करना ही नहीं आता, बस अपनी चलानी है. अपनी चलानी नहीं है, अपने ग्रुप में कन्विंस करना है लोगों को, यस आई कैन बी अ लीडर. So that is what they are looking at. Fine. Personal interview, one-to-one interview होता है बेटा. Personality assessment है बच्चा, knowledge test नहीं है. कोई क्वेश्चन नहीं आता, बड़े कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस. क्लियर. और उसके अंदर भी कोई इधर उधर से क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी आपकी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन देखते हैं. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, यू आर अवेयर ऑफ दैट और नॉट. ठीक है, और वही पावर ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली बेसिक. फाइन. अब सोचो what they are looking for. एक एक OLQ पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा. बेसिक समझ लीजिए, बेसिक इंटेलिजेंस. वो आप सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आप सब लोगों के अंदर होगी. जहां तक मुझे लगता है दिल्ली पहले ही क्रीम लेके चली जाती है ना, CBSE की कट ऑफ के हिसाब से. ठीक है, तो ऑलरेडी आप वो कर पाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. देन सम पर्सनल क्वालिटीज लाइक सेल्फलेसनेस. आपका खुद का हम कई बार आपकी टीम के लिए अच्छा होता है, तो आप वो करने के लिए रेडी हैं या नहीं. आप सोचिए, आप डे टू डे लाइफ में कैसे होता है. आपको जब अपना नुकसान होता है, किसी और का फायदा होता है, तकलीफ होती है या अच्छा लगता है.
कुछ लोग होंगे बहुत अच्छा होंगे, कुछ लोग कहीं नहीं, मैं अपने नोट्स भी नहीं दूंगी तुम्हें। कुछ लोग होंगे अपने नोट्स छोड़ के दूसरों के लिख देंगे, यार चल ठीक है तू कर ले। दैट्स द फीलिंग, और वो एकदम नहीं डेवलप होगी। हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग इट ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ, ड्यूरिंग योर स्कूल लाइफ, बच्चा, दैट इज व्हाट, हाउ मच यू हैव अर्नड इन दीज इयर्स, that is very important. Ability to mix in the unfamiliar circumstances. फौज is all about adaptability. बच्चों का पंखा ना चले दिन के अंदर तो आफत मचा देते हैं। मैम हम कॉलेज नहीं आएंगे, बारिश आ गई, मैम आज तो ये हो गया, मैम आज तो वो हो गया। बताओ भाई, इतना नहीं अडेप्ट कर सकते तो हाउ यू आर गोइंग। और ये आप डेली आपकी पर्सनालिटी के अंदर है। देन इंटीग्रिटी, दिस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस ऑन दैट। 99.9, 0.1 भी नहीं लेते वो, और हम क्लास में लेट आने पे झूठ बोल जाते हैं, मम्मी से वहां जाने पे झूठ बोल जाते हैं। आप खुद सोच लीजिए, ये रातों रात चीजें नहीं बदलेंगी, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में है तो निकल के आएंगी, अगर आपकी आदतें हैं तो एसएसबी में निकल के आएंगी। तो कोशिश करो अपने आदतों को बदल दो, अपनी पर्सनालिटी को बदल दो। कैसे बदल पाओगे? जब कॉन्टिन्यूअस 2-3 साल मेहनत करोगे। हार्डवर्क एक नशा है, बहुत खूबसूरत नशा है। जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं उसमें खुश परफेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करना शुरू करो। एंड फौज के अंदर फिजिकल स्टेमिना से ज्यादा बेटा दे आर लुकिंग फॉर योर मेंटल स्टेमिना। उसके ऊपर काम करना शुरू करो। स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल। जहां पे अपने शरीर को थोड़ी तकलीफ होने लगती है ना, बस वही, उसी से थोड़ा आगे जाना है हमें। ठीक है, कोई लोग 2 किलोमीटर भाग रहे हैं, सारी जिंदगी 2 भागते रहो, आगे कभी नहीं जा पाओगे। जब 2 के बाद यस थोड़ा और, तो अपने आप से कंपटीशन फील करके और सुनो। सो ओवरऑल दे आर लुकिंग फॉर सर्टेन काइंड ऑफ एटीट्यूड। किस तरीके के एक पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग चाहिए हो। और ये सिर्फ फौज में नहीं बेटा, आप कहीं भी जाएंगे आपको जिंदगी जीने में हेल्प करेगी। योर OLQs, ये उसी के ऊपर है। योर रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इनिशिएटिव लेते हो या नहीं। एनसीसी वाले बच्चों के अंदर ऑलरेडी आ जाता है। योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये स्पोर्ट्स आपको सिखाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिखाएगी, अडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, स्टेमिना। स्टेमिना इज मेंटल स्टेमिना। हमारी बॉडी की लिमिट्स बहुत हाई हैं, हम चेक ही नहीं कर पाते, हमारा दिमाग हमारा साथ छोड़ देता है। दैट इज व्हाट यू रियली नीड टू वर्क अपॉन। क्लियर? नाउ ये सब आप क्लियर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, बशर्ते यू ऑल नीड टू वर्क अपॉन इट कॉन्शियसली। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी हार्वर्ड की स्टडी है, विच से 15% ऑफ अ टाइम यू गेट अ जॉब because of the facts and figures, you know how smart you are. 85% of the time you get a job because of the right attitude you have. And imagine what we are doing. We are spending 100% of resources, energy and time on that 15%. 85% की किसी को चिंता ही नहीं है। Start working on that also. अगर आप अपनी मेंटल थॉट प्रोसेसेस को चेंज करोगे बच्चों, आई एम श्योर आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी सब चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, देन कम्स योर डिफरेंट ब्रांचेस जो आप ऑप्ट कर सकते हो वहां। देखिए, जब आप अकेडमी में जाते हो तो इट डिपेंड्स आपको कौन सी कोर मिलेगी, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड योर ऑर्डर ऑफ मेरिट। अगर वैकेंसी है, आप मेरिट में है तो आपको मिल जाएगी। अगर वैकेंसी है, आप मेरिट के अंदर नहीं हो, मतलब उससे ज्यादा ऑप्ट है, तो टॉपर्स को वो मिल जाती है। क्लियर? तो आप कौन कौन सी ऑप्ट कर सकते हो? सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, एयर डिफेंस, EME, ASC, ऑर्डिनेंस कोर, इंटेलिजेंस कोर, जैक ब्रांच। ठीक है, ये सब ब्रांचेस आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, now if you have any questions, the stage is open to you all. Fine, you can ask whatever query you have. ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आप सब लोगों का थोड़ा बहुत डाउट क्लियर करने के लिए। पूछिए। Oh my God, so many chat. मैम चलिए मैं पढ़ती हूँ। Your words are so captive. Thank you so much हिमानी। Thank you रिया। चलिए, तेजस्वनी क्या कहती है? मैम मुझे पूछना था कि स्पोर्ट्स कोटा में कितना। देखिए, स्पोर्ट्स कोटा कुछ नहीं होता है ऑफिसर के लिए। सबसे पहली बात, जब आप फौज में जाते हो, स्पोर्ट्स कोटा कोई चीज नहीं है वहां पे कि आप स्पोर्ट्स कोटा से जा रहे हो। ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग एज एन ऑफिसर, तो आपको SSB क्लियर करना पड़ता है, और SSB सेम फॉर एवरीवन। बट स्पोर्ट्स हेल्प यू इन बिल्डिंग दैट पर्सनालिटी। मैं
फौज में गई किस चीज की वजह से? मैं सच कर रही हूँ, स्पोर्ट्स। मेरी पूरी जिंदगी खेलने में निकल गई। मेरी दंगल की स्टोरी है। मैंने 7th क्लास से हैंडबॉल खेलना शुरू किया था। 8th में पहला नेशनल खेला, स्कूल नेशनल। हर 5 साल 8, 9, 10, 11, 12 स्कूल नेशनल। 9वीं से शुरू हो गए सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल। एक टूर्नामेंट होती थी, दूसरी। पूरा जिंदगी मेरी कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी में आई, 3 साल इंटर कॉलेज, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में गई। स्पोर्ट्स चाहिए क्या फौजी को? अडेप्टेबिलिटी स्पोर्ट्स सिखा देता है भाई। कहीं छोड़ दो, किसी कमरे में छोड़ दो, गद्दे लगा के हम सो जाते हैं। आप समझिए, है ना? गर्मी हो, सर्दी हो, मैचेस हो, कोई क्रिब नहीं। कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो। आई स्टिल रिमेंबर हमारे टाइम में एक बार हम मैच खेल रहे थे, बाल्टियां डब्बे रखे होते थे पानी के, एकदम आंधी आ गई और हम उसमें से ऐसे हटा के और ऐसे पानी पी के जा रहे हैं। स्टिल वी सर्वाइव्ड। Whatsoever your survival, your do or die instinct, that sports build you decision making. गोल मारना है या नहीं मारना है ना? स्पोर्ट्स आपको सिखा देता है। हाँ, टीम बिल्डिंग, टीम के अंदर आई प्लेड एज अ टीम। हैंडलिंग फेलियर्स, कितने आसानी से, रोज मैच हारते हैं, रोज अपने आप को करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। सो दीज आर द क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड, विच आर द वेरी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो कोटा कोई नहीं मिलता है, बट आपके अंदर वो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, which helps you to in clearing your SSB. तो being from sports background मुझे बहुत हेल्प हुई और मुझे बिल्कुल OTA में जाके भी I was in the top 3 of the merit list again because I was from the sports. भागना दौड़ना करना कुछ बुरा नहीं लगता, है ना? और जब आप भागते दौड़ते करते हो तो आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आप वैसे ही जिंदा दिल होते हो, खुश रहते हो, अडेप्टेबल होते हो, गाने गाते हो, कोई प्रॉब्लम हो। सो दे नीड दैट काइंड ऑफ पर्सन इन दैट। फाइन, तो स्पोर्ट्स कोटा नहीं होगा बेटा, बट वैसे आपको हेल्प कर देता है। ठीक है, ये समझ आ गया तेजस्विनी? आई होप सो बच्चा। क्लियर? नेक्स्ट मैम, योर वर्ड। थैंक यू सो मच। लड़कियां हैं, खुश कर देती हैं, अप्रिशिएट। और ये ना बहुत ब्यूटीफुल चीज है बेटा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, मुझे क्या लगता है कि व्हाट यू गिव टू द सोसाइटी यू गेट बैक द सेम थिंग, है ना? स्माइल दोगे तो स्माइल मिलती है, दूसरों की तारीफ करो तो तारीफ सुनने को मिलती है ना? तो व्हाई नॉट टू मेक दिस वर्ल्ड लाइक दिस? हर कोई पता नहीं कहाँ रैट रेस नेगेटिविटी के अंदर घुसा हुआ है, तो व्हाई नॉट टू बी अ गुड फाइंडर, बी होप, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, है ना? अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप सोचो, जो ये वॉर जीती गई है कारगिल जैसी, ये किस चीज पे जीती गई है? कितने ऑप्टिमिस्टिक थे लोग, कितने होपफुल थे वो लोग। सोचो, दुश्मन यहाँ बैठा है, यू आर इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर, बट स्टिल यस वी हैव टू गो, वी हैव टू फाइट, हम जीतेंगे। और हम एक छोटी छोटी प्रॉब्लम से हार जाते हैं। सो प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव री इंफॉर्मेशन, टेलिंग योरसेल्फ एवरी डे। स्पोर्ट्स में देखो, कोई अच्छा नहीं खेल रहा होता तो वो अपने आप को कहते हैं नो आई कैन डू इट। यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली। टॉक अबाउट हेल्थ, टॉक अबाउट हैप्पीनेस, टॉक अबाउट प्रॉस्पेरिटी। आई एम श्योर हम सब वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर बिल्ड कर पाएंगे। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। Fine. Society perceive that by joining army, women will lose its femininity. Who say so? Who say so? Society तो कुछ ना कुछ कहेगी बेटा। Society की चिंता मत करो। अच्छा, she won't be able to focus on nurturing her family. Show them all those daring girls. Show them me. Ask my son. ठीक है? तो कोई वो नहीं है। Society देखिए, most of the time हम क्या कर रहे हैं? We are running our life. और we are living our life किस चीज के ऊपर? या तो टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अदर और टू रन फ्रॉम देयर क्रिटिसिज्म। दे विल से समथिंग, ठीक है? देयर आर नेगेटिव पीपल ऑल अराउंड, दे विल टेल यू सम और द अदर थिंग। इट्स यू। सावित्रीबाई फुले ने जब एजुकेशन स्टार्ट करी थी, कुछ ना कुछ कहा था। भगत सिंह ने जब लड़ना स्टार्ट करा था, उसको भी टेररिस्ट कहा गया था। यू सी व्हाट योर वैल्यूज आर, यू सी हाउ यू हैव टू मेक द चेंज इन द सोसाइटी। सो विद योर एक्शंस डू दैट, नॉट विद योर वर्ड्स। जब हम अच्छा करना शुरू कर देंगे तो अपने आप सब कुछ सही रास्ते पे आता चला जाएगा। ठीक है? अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑफ हार्ड वर्क, यस, समटाइम वी टेंड टू प्रोकास्टिनेट। बड़ी गंदी आदत है यार, डिलेइंग थिंग्स। ये सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का रीजन है। बच्चों, जो प्रोकास्टिनेशन है ना, डिलेइंग टास्क, वो आपकी एनर्जी ज्यादा सक करता है। जो फुलफिल्ड टास्क होती है, कंप्लीट टास्क होती है, इट fills you with energy. So you need to tell every time to your brain, your mental
mind to your mindset, no, I have to complete this, ये मुझे करना है, बिकॉज वो करने में टाइम कम लगता है ना, और उससे ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है चिंता करने में, हाय मैंने तो ये नहीं किया, हाय मैंने तो ये नहीं किया। ठीक है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ओवर वाला जो ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इसको हमें तोड़ना होगा। साइकोलॉजी के अंदर सिखाया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज के अंदर, कॉग्निशन फर्स्ट इज योर थॉट, फर्स्ट यू नीड टू वर्क अपॉन योर थॉट प्रोसेस, योर माइंड सेट। योर माइंड वर्क्स ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गिव टू योर ब्रेन, इट विल प्रोसेस द सेम इंफॉर्मेशन। सो व्हाई नॉट टू गिव गुड इंफॉर्मेशन, व्हाई नॉट टू फीड आवर ब्रेन विद द पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस। हर टाइम जब वो डालते रहोगे कंसिस्टेंसी से, आपकी लाइफ के अंदर वो चेंजेस आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। देखते तो वेब सीरीज है Amazon के ऊपर जो चली हुई है आजकल, भगवान जाने पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिव चीजें लोग बनाते हैं और दिखाते हैं हमारी यंग जनरेशन। तो रीड अबाउट गुड थिंग्स, रीड अबाउट गुड पीपल, वॉच गुड थिंग्स, वॉच गुड सम मोटिवेशनल लेक्चर्स, रीड अबाउट गुड पीपल। तो आप अच्छी चीजें अपने दिमाग में डालिए। जैसे अपनी बॉडी को आप जैसा फूड देंगे, आपकी बॉडी की हेल्थ वैसी रहेगी। दिमाग को भी आप जैसे अपना फूड डालोगे, जिस तरह की थॉट प्रोसेसेस डालोगे, उतना ही हेल्दी आपका माइंड रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ रहेगी। क्लियर मैम? मैं भी हैंडबॉल से हूँ। सो नाइस तेजस्विनी। मैं खालसा कॉलेज की टीम होती थी उस टाइम, छत्रसाल स्टेडियम में शिवाजी सर के साथ हम खेलते थे। अगर आप शिवाजी सर से मिले तो मेरी रिगार्ड्स दीजिएगा उनको प्लीज। ठीक है, आई एम फ्रॉम द बैच ऑफ मतलब 2002 तक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से खेली हूँ, मैं नेशनल्स भी खेली हूँ, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी भी। आईपी कॉलेज की टीम होती थी, बस मैं ही लेके जाती थी, बिकॉज बाकी मैं बास्केटबॉल वाली बच्चों को लेती थी। मेन सारी खालसा में टीम होती थी, बट मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन उनके साथ खेलने जाती थी। क्लियर? कौन था मेरा बच्चा? ये तेजस्विनी। ठीक है, ये नाइस, गुड टू नो। या स्पोर्ट्स वाले बच्चे दिखते तो आई हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर। तो मैं उस कोई भी स्पोर्ट्स वाले बच्चे का मैसेज आता है, मैं जाके जरूर कोशिश करती हूँ आउट ऑफ माय शेड्यूल कि मैं रिप्लाई करूँ। लता विश, आई वांट टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ अ वुमेन ऑफिसर। पूरा तो वो बता दिया बेटा, लाइफ ऑफ अ वुमेन ऑफिसर अभी पूरा सेशन मैंने उसी पे ले दिया। व्हाट एक्चुअली दे डू, नॉर्मल जो ऑफिसर्स करते हैं। सुबह आपकी पीटी से स्टार्ट होती है, फिर आपका जो टास्क है, आप जहां गए हो, जिस भी आपकी अपॉइंटमेंट है, अगर आप यूनिट में पोस्टेड हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस का काम करते हो, मैन मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, गाड़ी निकालनी है, कहां से निकालनी है, आपकी वेपन ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, एवरीथिंग यू डू व्हाट द अदर ऑफिसर्स आर डूइंग इट, डिपेंड अपॉन योर पोस्टिंग। आपको जो सी पोस्टिंग मिली है कहां, बट एवरी पोस्टिंग यू गेट अ डिफरेंट चार्टर ऑफ ड्यूटीज ऑल टुगेदर। ठीक है, यस, लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली, एज यू सेड मेन पॉपुलेशन वाज मोर देन फीमेल्स, हाउ यू मैनेज टू लिव, कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, एवरीथिंग इज इन योर एटीट्यूड। मैं सच बता रही हूं, पीपल आर, वहां पे भी जब ऑफिसर्स भी हैं, हाउ डज इट मैटर, वहां पे जेंडर नहीं देखा जाता फौज के अंदर। लेट मी टेल यू, आपके पास ट्रूप्स भी हैं, मेन भी है, दिल कॉल यू साहब, और आप में कॉन्फिडेंस है। मैंने रात को ड्यूटी चेक्स पे भी जाते हैं, सब मेल ऑफिसर होते हैं, मेरे गाड़ी वाले जो ड्राइवर होते हैं, बाकी जो ट्रूप्स होते हैं, दे कॉल मी साहब, और उनके साथ नाइट ड्यूटी, कोई रात को दारू पी के मिल भी जाए तो उसको रोलिंग भी करानी पड़ती है। ठीक है, सो यू जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म इन योर डिसीजन। किसी की हिम्मत नहीं होती आपको कुछ कह दे, इट्स ऑल अबाउट यू, हाउ यू कैरी योरसेल्फ। और कोई कुछ कह दे तो उनको एक के बाद दो सुनाने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। क्लियर? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लॉट्स ऑफ ह्यूमर अबाउट आईसाइट इशू इन आर्मी, कैन यू? बेटा मेडिकल पॉलिसीज हैं, ठीक है, एक क्राइटेरिया दिया हुआ है भाई, प्लस माइनस इतने से इतने तक चल जाती है। आप मेडिकल पॉलिसीज में जाके चेक कर लीजिए, यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया। मुझे एग्जैक्ट रेंज नहीं पता है, बट इन सर्टन रेंज के अंदर अगर आपकी आईसाइट वीक है तो विद स्पेक्स आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है मैम, हमारे कोच भी वही हैं। ठीक है तेजस्विनी, प्लीज नमस्ते बोलिएगा सर को और रिगार्ड्स दीजिएगा मेरी तरफ से। फाइन। वांटेड टू आस्क हाउ कैन आई इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन, यू नीड टू वर्क अपॉन इट। हर चीज प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस कीजिए बच्चा। आपको पता है आपका कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमें पता है कि हमने 110% किया इस चीज के लिए। ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखेंगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, उसकी डेली पढ़िए, ठीक है, अपनी वीडियोस बनाइए, खुद से देखिए, ठीक है, कि मैं ठीक कर रही हूं या नहीं कर रही हूं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, डेली अपनी थॉट प्रोसेसेस को लिख के देखिए जर्नल्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, चलिए और बताइए, कैन वी डील विद फेलियर्स ड्यूरिंग स्ट्रगलिंग डेज? वेरी ट्रू बच्चा, बहुत जरूरी है। अब समझ के देखिए, ठीक है, मैं ये नॉर्मल है भाई,
आप किसी बंदे को जानते हो जो कभी लाइफ में फेल ना हुआ हो? टेल मी, एनी पर्सन? I don't know anyone. I have read the stories of so many successful people, so many people who are so well established over there. They all have failed. Kabhi na kabhi, kahin na kahin. So when the term comes failure, the first thing should come to your mind is let's accept it. We all are human beings. We all make mistakes. ठीक है, जो फेलियर्स है वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. इंटेलेक्चुअली आप सबको पता है ये बात, ठीक है. अगर आप दिमाग से सोचोगे हाँ हाँ जितने भी बड़े लोग हैं फेल हुए हैं, ये हुए हैं, फेलियर्स आर ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ आवर लाइफ, बट स्टिल वी ऑल हेट टू फेल. हमें डर लगता है फेल होने से, और अगर एक बार हो जाए तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं. नहीं मैम अब तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस का ही नहीं है. सो व्हाई इज इट सो हार्ड टू फॉरगिव योरसेल्फ यार? जो पास्ट में हो गया. फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है. व्हाट इज देयर इन योर कंट्रोल इज प्रेजेंट. स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. उसको टेंशन में क्यों बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, तो फेलियर्स आर द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ योर लाइफ. इट इज गोइंग टू बी देयर. फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं हमारे लाइफ का. इट गिव्स अस द बहुत खूबसूरत चीजें, एम्पैथी, कंपैशन. जीत तो सिर्फ एक गुरूर देती है हमें. जो फेलियर्स ही है लाइफ की ट्रू मीनिंग आपको समझाते हैं. एक्सपीरियंस, first hand knowledge of doing that particular thing, resilience. जितने ज्यादा फेल होते हैं उतने ज्यादा resilient बने जाते हैं. And resilience is one of the qualities which is required to become a successful person. Because successful वही होते हैं जो जब तक नहीं तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक वो वहां पहुंच नहीं जाते, और फिर एक और गोल ले लेते हैं. That is what is required. हाँ, जब फेलियर आ जाता है, प्रॉब्लम क्या है? इट यार first thing what you need to do to handle it is, first thing is accept it. Accept the way you are feeling. Yeah, if you have failed in something, obviously it is going to hurt. Sometime a bit, sometime more. And that's okay. Don't try to paint yourself with that fake smile or everything is okay, everything is fine, or distract yourself or start blaming the rest of the world. Be mature to accept the responsibility of your own failure. Start accepting your own life. Don't blame it always. Don't leave your anchors in the hands of others. And emotions को पहचानिए, समझिए. रोना आ रहा है, रोइए. चिल्लाने का मन कर रहा है, चिल्लाइए. उन फीलिंग्स को बाहर आने दीजिए. प्रॉब्लम कब होती है? जब फीलिंग्स बाहर नहीं आती है, अंदर ही रहती हैं, बवाल मचा देती हैं. सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी क्यों होती है? बिकॉज यू आर नॉट शेयरिंग इट. सो फर्स्ट स्टेप, लेट्स टॉक अबाउट आवर फेलियर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग, once it is there, रोलिए, चिल्लाइए, साइड में रखिए. Now learn from your failures. What is the one thing I can learn from my failures? Learn it. क्या सब चीजें मेरे आउट ऑफ कंट्रोल थी, या मैं कुछ बेटर कर सकती थी? अगर कर सकती थी तो वो क्या था? Start working on that. That is what is required. Learn from your failures. और उसके बाद कोशिश कीजिए जो वो एक चीज याद करिए ना, बस मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी नेक्स्ट टाइम, चाहे दूसरी गलती कर दीजिए. तो ठीक है, think it, adapt it. Adapting to your own failure is very important. Now start, मतलब पॉजिटिव के बारे में सोचिए ना. आप सोचिए कि मैं सक्सेस के एक कदम और पास हूं. एटलीस्ट इस तरीके से काम तो नहीं हुआ, इस तरीके से जरूर हो जाएगा. स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द कंप्लीट सिचुएशन विद अ न्यू पर्सपेक्टिव. Clear? And stop obsessing about your failures. और चौथी चीज, stop that need of approval from others. Most of the time fear of failure is rooted in the fear of being judged by others. कि we'll lose our self-respect, where people will not like us. हमारे यहाँ ये सोसाइटी ने बना रखा है कि हमें आज नीरज चोपड़ा दिख रहा है, उसकी जर्नी नहीं दिख रही. That epic journey which is full of failures, which was full of trials. कहीं ना कहीं उन्होंने भी challenges face किए होंगे. तो start enjoying that journey of yours. वहां पहुंच जाओगे जहां जाना है. बट करना जैसे बच्चा चलना सीखता है, तो क्या एक ही दम भागने लग जाता है ना? चलते चलते गिरता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है. आस्क हर मदर, क्या आपका बच्चा चल पाएगा? वेरी कॉन्फिडेंटली शी विल से, नो माय चाइल्ड विल वॉक वन डे, बिकॉज वी ऑल हैव एक्सेप्टेड दैट व्हाइल लर्निंग फॉलिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट. So why not we take it all other failures also? To have a successful life, to reach to your goals, there will be many setbacks and failures which you are going to face it. अगर recently किसी को हुआ है, don't feel disheartened यार. At least आप उन बच्चों से तो अच्छे हो जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया.
आपको एक्सपीरियंस है उस चीज का कि मैं क्यों फेल हुई, आपको नॉलेज मिली है उस चीज की. सो डोंट फील डिसहार्टेंड बच्चा, डोंट फील डिसहार्टेंड. क्लियर? चलिए, आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे. एंड क्वेश्चंस हैं, और मैं अपना ना ये लिंक ट्री का एक डाल देती हूँ बेटा. ये लिंक ट्री नहीं है, क्या है ये, टेलीग्राम पे मैंने अभी एक चैनल शुरू किया है. यू ऑल कैन ज्वाइन मी, बिकॉज बहुत बच्चों की क्वेरीज आती हैं. पर्सनली मुझे आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सो आई ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, सो आई एम अवेलेबल ऑन माई इंस्टा पेज कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह करके. सो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू गर्ल्स आउट ओनली. मुझे ऐसे लगता है यस, इंडियन आर्मी नीड्स गुड एंड ब्राइट ऑफिसर. दैट्स व्हाट इज माई एम इज. ठीक है, मैंने छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया था. अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिकॉज मुझसे अपने आप को देख के बात ही नहीं होती है. ठीक है, तो मैं जब तुम बच्चों से बात करती हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, सो दैट्स हाउ आई टेक मोर एंड मोर वेबिनार्स, जहां मैं कनेक्ट कर पाती हूँ आप जैसे अच्छे बच्चों के साथ. ठीक है, बट येस, इन केस इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट समथिंग, और कोई इशू है कुछ है, तो मैंने अभी एक वेबिनार सीरीज स्टार्ट किया स्पेशली फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स. वो टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और मैं अपने इंस्टा पे भी अपलोड करती रहती हूँ. सो इन केस इफ यू लाइक इट, यू कैन ज्वाइन इट. उसके अंदर भी बेटा मैं कोई इंडिविजुअल काउंसलिंग नहीं दे रही हूँ किसी को. मैं बता रही हूँ प्रोसेस ऐसे ऐसे होता है, ये चाहिए. काम आपको खुद करना है, मेहनत आपको खुद करनी है. फाइन. And I loved interacting with you all girls. I hope मैंने आप लोगों का ज्यादा टाइम तो नहीं लिया, और आपके लिए वर्थ था आपका ये 1 घंटा, बिकॉज टाइम बहुत पावरफुल है बच्चों. हर के पास 24 घंटे ही होते हैं. उन 24 घंटों के अंदर आप क्या कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस इन योर लाइफ. है ना? गोल सबके पास होते हैं, सक्सेसफुल लोगों के पास भी होते हैं, अनसक्सेसफुल लोगों के पास भी होते हैं. उन गोल्स के ऊपर आप एक्शंस क्या ले रहे हो, काम क्या कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. क्लियर है सबके लिए? ठीक है, एंड लॉट्स लव टू यू ऑल. थैंक यू सो मच. So nice. Thank you. Oh my God. Ma'am, your presence. Thank you so much, girls. यार, you all are lovely. ठीक है. I hope मतलब I was able to help today. Yes, ma'am. Your presence and gentle words were really a source of encouragement for all. We did learn a lot and are full of josh now. जोश का मत होने देना, बस जोश हाई रहेगा, जिंदगी हाई रहेगी. Really motivated. Thank you so much, ma'am. You're welcome, dear. ठीक है. Once again, I would like to thank you, ma'am. Your words are really motivating. Moving on to the last performance of the day. Dance is the joy of movement and hidden language of the soul. Here presenting a glimpse of traditional dance form with modern energy. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन. तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से. तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से. पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन. वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का. आओ तो जोश, आओ तो जोश. जय हिंद, जय हिंद. मैं लड़ जाना है
astonishing performance. सही कहा गया है, नृत्य तो कला ही वरदान है और आप सभी को यह वरदान पूर्णतः रूप से मिला है. And here comes the breathtaking moment, the result declaration. It is not the will to win that makes you a winner, but the will to prepare to win which does. I would like to invite our CQMS, Himani ma'am, to announce the winners of the Inter-College Rangoli Making Competition on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, based on the theme Azadi Ki Kahani, Rango Ki Zubani. Jai Hind everyone. So the results for the competition are as follow. The second position is bagged by Corporal Dipali for making this wonderful and beautiful Rangoli. And the first position goes to Cadet Tanisha Sahu. I congratulate and appreciate the winners and all the participants for making such beautiful and powerful rangolis. Now, I would like to invite our junior under officer, Shruti ma'am, to conclude this amazing event with a vote of thanks. Thank you, Sejal, for inviting me. Jai Hind and a very warm evening to all. I am Junior Under Officer Shruti and would like to take this great opportunity to propose today's vote of thanks. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for blessing us all and to all the noble souls who laid down their lives for the freedom struggle. We are extremely grateful to our guest of honor, Captain Dr. Sunaina Singh ma'am, who enlightened us with her passion and knowledge. Our principal ma'am, who unfortunately didn't join us, but respected Professor Swati Pal ma'am for her constant encouragement and support. We are grateful to our caretaker, Dr. Devahuti ma'am, for always guiding us to strive higher. This event would not have been a success without all those who register for our Inter-College Delhi Directorate Rangoli competition held on 14th August 2021. A special thanks to the audience who participated in our enlightening session. Special regards to all the faculty members and administrative members for their continuous support. Last but not the least, I thank all the members of the JDMC NCC family who have been working continuously and striving for higher goals. Finally, I would like to take your leave with this inspiring quote which says, "Zindagi ki asli udan abhi baki hai. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है." Very good, yeah. So nice, so nice. It filled me also with Josh. ठीक है? So nice, Shruti, and all the best to each one of you. ठीक है? Stay happy, stay safe. ठीक है? And keep smiling always. Life is what we make it. So why not to make it more beautiful? ठीक है? Let's make it very simple. खुली किताब है भाई, जिसको पढ़ना है पढ़ लो. ठीक है? So let's make this world more beautiful. Fine. Stay happy always, all of you, and thanks for being such a patient listener. बहुत ही अच्छे audience है. I thoroughly enjoyed the session and it was very well coordinated. Hats off to the Dr. Devahuti also. I'm sure itni अच्छे जो cadets हैं, तो they talks about her only, to how she's grooming you all young girls. So it was so nice. Thank you so much to each one of you. Love you all. Stay happy. Thank Happy you, Independence ma'am. Day. Thank you. I would like to take this opportunity to just say, you know, I go back to the same line. It is the women power and the girl power within us, which actually Yes. makes us exceptional. So yes, I'm Yes. truly biased towards it. Yeah, me too. If anybody says so, anything, yeah, me too.
किसी भी गर्ल्स कॉलेज से कुछ आ जाए तो I'll never say गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हो स्कूल हो कुछ भी I'll always say yes I'll take out some time for these girls यार they need it. So thank you. We are really grateful. I mean, I think so. It was a true celebration for us having you. And एकदम कहते हैं ना महोत्सव आजादी का अमृत महोत्सव. It is actually a mahotsav even if it is online. And we hope to have you in our college campus soon as we come back to the new normal. I'm looking for that. I'm looking for that. जो मिलके बात होती है ना बच्चों के साथ है ना because you can hug people, you can tell them, you can look into their eyes. तो ये अलग ही जज्बा होता है ठीक है. I'm looking forward to it. The moment the things will get normalized, so definitely I'm going to visit your college also one day. Fine. Yes, ma'am. Ma'am, I would request you to please stay with us till the national anthem. Yes, I'll do that, बच्चा. इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी है चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर सेवा की है शहीदों ने जिसकी, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिलों में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिलों में बसाए रखना. Now it's time for national anthem. आप सभी से अनुरोध है आप सभी अपने स्थान पर बैठे बैठे सावधान Once again, I would like to thank you, ma'am. Your words were really motivating and inspiring. Thank you, each and every one of you, for joining the session. Signing off, thank you for being such a patient audience. Jai Hind. And thank you, Sejal and Bhumika, for such a good coordinator. Thank you so much, girls. Thank you for each one of you. Bye. Bye-bye. Take care. Bye. Jai Hind, ma'am. Jai Hind. Jai Hind to everyone. Jai Hind. Jai Hind. Stay happy. Keep your Josh high. Okay? Bye-bye. Take care. And I want to see you very soon in army somewhere, na? Wearing that uniform. Ma'am, I attended your session that day. Really, I want to see you. ठीक है कुछ को तो मैं पक्का मिलूंगी फौज में कहीं ना कहीं ठीक है चलिए फिर टेक केयर बाय बाय